30 April 2026. Lecture 1. Income Tax Act 2025 applicable from 1st April 2026. Demerits of old Act 1961 because of which new Act come. First, rigid. Second, loopholes. Third, complex. Yearly updated by Finance Acts. Too many sections and forms and explanation. Video on forms is uploaded. Now, comparative analysis of old versus new app with section mapping. There are 190 forms divided
in into sections A to R. Watch the video. This is how we will make the session map. Right? Short title, strength and commitment. Section 1 of in old act, section 1 in new act. Definition is section 2 in old act and section 2 same in new act. But clauses are changed. Like clause 1 is now clause 4. That's how we will make the section map. First is short title, extent and commitment. It is called Old Act is called Income Tax Act 1961, applicable to whole of India, applicable from 1st April 1962. Same is the Income Tax Act 2025, which is applicable to whole of India and applicable from 1st April 2026. Accountant definition is the new one. Shall have the meaning assigned to its section 5153B, Income Tax Act 2025. This definition is the new definition. Now, additional commissioner, which was defined in section 2, 1 IC, is now defined in clause 2. Means a person appointed to be an additional commissioner of income tax under section 237, subsection 1. Previously, it is defined under subsection 1 of section 117. Next is additional director, which was previously defined in section 2 1 ID. Now it is defined in clause 3 of section 2. Means additional director means a person appointed to be an additional director of income tax under section 237 subsection 1. Previously it was defined in subsection 1 of section 117.
Advanced tax, which was previously Section 2, Subsection 1, now Clause 4. Therefore, tax haven as per Chapter 19C, now 18C. Next is agriculture income. Uh, Previously, previously it is defined in Section 2, 1IA. Now it is defined in Section Clause 5. Definition: any rent or revenue derived from land which is situated in India and in use for agricultural purpose. किसी भी लैंड जो है से एग्रीकल्चरल इनकम होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है रेंट से या रेवेन्यू से, जो लैंड इंडिया में सिचुएटेड है और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज होती है। नेक्स्ट इनकम ड्राइव बाय सच लैंड बाय एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, कोई इसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, अगर इनकम होती है कि कुछ कल्टीवेटर जो है परफॉर्मेंस करता है, या जो रेंटेड काइंड मतलब बार्टर सिस्टम के थ्रू किसी को कुछ रिसीव होता है ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज बाय और रिसीव बाय हिम फिट टू बी मार्केट। उस प्रोड्यूस को जनरेट करने के लिए जो भी प्रोसेस हुई है कल्टीवेटर के द्वारा या रिसीवर ऑफ रेंट एंड काइंड। रेंट एंड काइंड मतलब जिसको हम पैसे के बदले फसल देंगे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे जो मार्केट के लिए एप्लीकेबल होगी, सेलेबल होगी, वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। या तो by selling of the product natural on which no process has been performed other than a process of nature naturally प्रोड्यूस जो भी हमारा गुड्स है उसको सेल करके जो भी इनकम आएगी उसे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। सी हम अगर इनकम अगर कोई किसी बिल्डिंग से होती है जो कि ओन्ड और ऑक्यूपाइड होता है बाय द receiver of the rent revenue or revenue और occupied by the cultivator और receiver of rent, या तो वो जो जिसको रेंट मिल रहा है उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसको रेवेन्यू मिल रहा है उस लैंड से उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, या जो कल्टीवेटर है जो परफॉर्म कर रहा है कल्टीवेशन उसने ऑक्यूपाई कर रखी है, या जिसने को रिसीव हो रहा है रेंट इन काइंड यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रिसीव हो रहा है ऐसा कंसिडरेशन उन्होंने अगर कोई लैंड यूज कर रखी है तो वो उस लैंड से होने वाले रेवेन्यू को भी हम एग्रीकल्चर कहेंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले वो लैंड इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड होनी चाहिए, मतलब वो लैंड के सबसे करीब होनी चाहिए। वो सेकेंड वो comprise within jurisdiction of municipality or a cantonment board which has population of not less than 10,000। उस जगह की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं है। और ऐसे इलाके में अगर हमारी जमीन है तो वहाँ उस जमीन को 10,000 उसको एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। पहले क्लॉज डी सैम्पलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी, नर्सरी प्रोड्यूस को हमने एक्सप्लेनेशन में दे रखा था ओल्ड एक्ट में। अब ये हमारा 5 का सब क्लॉज बन गया है डी। एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सैम्पलिंग और सीडिंग्स ग्रो इन अ नर्सरी। कैसी लैंड को हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे जो comprise within the jurisdiction of municipality or a cantonment which has a population of 10,000, जिसका 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं होगी उस एरिया जिस इलाके में म्यूनिसिपैलिटी में
10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं होगी उसे अर्बन लैंड माना जाएगा। उसके बाहर की जमीन को अर्बन लैंड एग्रीकल्चर लैंड माना जाएगा और उससे जो भी इनकम ड्राइव होगी वो एग्रीकल्चर इनकम कही जाएगी। अगर उस कहीं की पॉपुलेशन 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच में है तो 2 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन लैंड कहलाएगा। उसके अलावा उसके बाहर का एरिया हमारा एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा, जिसपे जो भी कल्टीवेशन होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, उसे हम एग्रीकल्चर इनकम कंसिडर करेंगे। अगर आपकी उस एरिया की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख तक के बीच में है तो 6 किलोमीटर तक का एरिया को हम जो है अर्बन लैंड मानेंगे और उसके बाहर के एरिया को एग्रीकल्चर लैंड मानेंगे और उसमें जो प्रोड्यूस होगा उसे उससे ड्राइव होने वाले कंसिडरेशन को एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे। अगर आपकी मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर तक का एरिया हमारा जो है अर्बन लैंड कहलाएगा। उसके बाहर का एरिया हमारा एग्रीकल्चर लैंड कहलाएगा और उस पर ड्राइव होने वाली कोई भी इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे। पर उस इनकम में but shall not include income derived from building or refer to in surplus arising zero such land or for any purpose। या तो हम रेजिडेंशियल पर्पस के लिए या किसी और बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस के लिए उस लैंड बिल्डिंग को या लैंड को यूज कर रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी के, तो उससे जनरेट होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। एनी इनकम बाय ट्रांसफर ऑफ लैंड, उस लैंड के ट्रांसफर टू रेफर्ड इन क्लॉज 22 क्लॉज ऑफ सेक्शन 22 सबसेक्शन थर्ड ए और बी के अंतर्गत अगर हम लैंड को सेल करते हैं तो उससे ड्राइव होने वाली इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहेंगे। अमलगमेशन की डेफिनेशन पहले सेक्शन 2(1)(i)(b) में थी, अब क्लॉज 6 में है। अमलगमेशन मीन्स जब एक या एक से ज्यादा कंपनी अमल को दूसरी कंपनी ऑक्यूपाई कर लेती है उसको अमलगमेशन कहते हैं, या दो से ज्यादा कंपनी एक कंपनी बना लेती हैं उसको भी हम अमलगमेशन कहते हैं। अमलगमेशन में अमलगमेशन होने की कंडीशन क्या है? सारी प्रॉपर्टी जो अमलगमेटिंग कंपनी की है वो इमीडिएटली बिफोर द अमलगमेशन बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ अमलगमेटेड कंपनी। मतलब जो भी प्रॉपर्टी अमलगमेटिंग कंपनी की है, कंपनीज की है, वो अमलगमेटेड कंपनी की हो जानी चाहिए। जो भी लाइबिलिटी है वो भी अमलगमेटेड कंपनी की हो जानी चाहिए। और नॉट लेस देन 3/4 ऑफ इन वैल्यू ऑफ शेयर, फिर को अमलगमेटेड कंपनी के भी शेयर्स मिल जाने चाहिए। नॉट लेस देन 3/4। कराता है हमारा एनुअल वैल्यू। पहले ये सेक्शन 23 सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 2 में डिफाइंड था कि एन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी मींस इट्स वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 21। नाउ इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 23। फिर हमारा आता है अपीलेट ट्रिब्यूनल। Appellate tribunal means
every tribunal instituted under 361. Previously ये सेक्शन 2 क्लॉज 4 में आता था, अब सेक्शन 2 क्लॉज 8 में आता है और कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 252 था, अब जो है 361 हो गया है। नेक्स्ट हमारा आता है approved gratuity fund. Means a gratuity fund which is approved and continues to be approved by the approving authority as per part B of schedule 11. अब पहले ये सेक्शन 2 क्लॉज 5 में था, अब ये क्लॉज 9 में है। और पहले इसका जो सेक्शन था, शेड्यूल था, पार्ट, वो पार्ट सी ऑफ 4 शेड्यूल था, अब बन गया है पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 11। नेक्स्ट हमारा 10 सब क्लॉज है जो है अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। मीन्स अ सुपर एनुएशन fund or any part of a superannuation fund which is approved and continues to be approved by the approving authority as per part B of schedule 11 means कोई फंड और any superannuation fund जो कि approved and continues to be approved by the approving authority as per part B। पहले ये सेक्शन 2 क्लॉज 6 में था, सेक्शन 2 क्लॉज 6 में था, अब ये 10 में है। एसएससी की डेफिनेशन, एसएससी अब डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 11 में। पहले जो कि डिफाइंड था क्लॉज 7 में। एसएससी की क्या डेफिनेशन है? Every person of whom any proceeding under this has been taken for the assessment of his income or of the loss sustained by him or refund due to him। कोई भी पर्सन जिसके कोई प्रोसीडिंग इस एक्ट में चल रही है, किस तरह से? पहला है कोई असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, इनकम का असेसमेंट चल रहा है, ये लॉस जो सस्टेन हुआ है, या कोई रिफंड उसको ड्यू है, इसकी प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो असेसी कहलाया जाएगा। For assessment of the income of any other person in respect of which he is assessable means clubbing means clubbing or loss sustained by such other person or refund due to such other person। इसमें एक और बात कही है, every person who is deemed to be an assessee under any provision of the act। इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन में अगर उसे डीम टू बी एन एसएससी माना गया है
तो वो भी एसएससी होगा। अगर कोई डिफॉल्ट करा है एसएससी ने, every person who is deemed to be an SSC in default under any provision of this act, उसको भी हम एसएससी मानेंगे। असेसिंग ऑफिसर कौन होगा? assessing officer, the assistant commissioner or deputy commissioner or assistant director or deputy director or the income tax officer who is vested with relevant jurisdiction by virtue of direction or order issued under section 241 subsection 1 or 2 or 3। कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जिसकी जो रेलिवेंट जुरिडिक्शन में बाय वर्च्यू ऑफ इस सेक्शन 241 1 2 और 3 के अकॉर्डिंग होगा, वो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा। या तो एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर, वो इज डायरेक्टेड अंडर 241 5 सब क्लॉज बी to exercise or perform all or any of the power and functions conferred on or assigned to an assessing officer। जो हमारा एडिशनल कमिश्नर होगा, एडिशनल डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर होगा जिसको डायरेक्ट करा गया होगा सेक्शन 241 सब सेक्शन 5 क्लॉज बी में कि एक्सरसाइज और परफॉर्म ऑल पावर फंक्शन और असाइन टू एन असेसिंग ऑफिसर। हमको पावर दी गई है सेक्शन 241 5 बी में। पहले ये हमारा पावर जो दी गई थी जो 241 1 2 और 3 में थी, वो पहले सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 और 120 था। और जो हमारा रीजनल डायरेक्टर और जॉइंट कमिश्नर और जॉइंट डायरेक्टर को पावर दी गई थी, वो क्लॉज बी था सबसेक्शन 4 और 120 का। नेक्स्ट हमारा असेसमेंट है। असेसमेंट पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 में कहा गया है, अब लेकिन अब ये क्लॉज नंबर 13 में है। इंक्लूड रीअसेसमेंट एंड रिकम्प्यूटेशन। रिकम्प्यूटेशन न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। न्यूली इंट्रोड्यूस, पहले इनकम को रिकम्प्यूट नहीं किया जाता था, अब इनकम रिकम्प्यूट होगी। पहले हम सिर्फ रीअसेसमेंट पे फोकस करते थे, अब रिकम्प्यूटेशन हो पाएगी। हाईलाइट क्या है? सबसे बड़ी हाईलाइट है कि असेसमेंट ईयर जो डिफाइंड था सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, वो रिमूव कर दिया गया है इस एक्ट में। लेकिन इनकम अर्न इन टैक्स ईयर विल बी असेस्ड एंड कंप्यूटेड इन द नेक्स्ट सक्सीडिंग टैक्स ईयर एंड टैक्स लायबिलिटी विल बी पेड। मतलब जैसे कि टैक्स ईयर हमारा 2026 है, ये हमारा टैक्स ईयर है, इसमें जो भी इनकम हमने अर्न करी है वो नेक्स्ट टैक्स ईयर यानी कि 2027-28 को हम कंप्यूट करेंगे और जो भी हमारी लायबिलिटी होगी उसको पे करेंगे। बस ये चेंज हुआ है, टैक्स ईयर असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर आ गया। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट कमिश्नर। कमिश्नर कौन है? पर्सन अपॉइंटेड टू बी एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और डेप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 237 1। पहले ये जो था 29A में था, अब ये क्लॉज 14 में डिफाइंड है। पहले इनकी पावर सेक्शन 237 वो सेक्शन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 117 में थी, अब इनकी पावर अंडर सेक्शन 237 सबसेक्शन 1 में डिफाइंड है। नेक्स्ट आते हैं हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर। मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड टू बी एन असिस्टेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स और डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 237 1। पहले ये 29 बी में डिफाइंड थे, अब इनके लिए सेपरेट क्लॉज है 15। इनका पावर सेक्शन था सब सेक्शन 1 और सेक्शन 11
7 अब इनका पावर सेक्शन है 237 सबसेक्शन 1 इनका पावर सेक्शन है। फिर हमारा आता है एवरेज एक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं है, डेफिनेशन सेम है। पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में था, अब ये क्रॉस 16 में है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, मीन्स द रेट अराइव्ड बाय डिवाइडिंग द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। मीन्स रेट एवरेज रेट हमारा आया है डिवाइड करने से, किसको डिवाइड करने से, इनकम टैक्स जो हमारा कैलकुलेट करा गया है ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम, जो हमारी टोटल इनकम से हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करा गया है उसको डिवाइड करके जो रेट आता है उसे एवरेज रेट ऑफ इनकम कहते हैं। वैसे क्लॉज चेंज हुआ है। नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ असेट, क्लॉज 17 means group of asset falling within a class of asset comprising tangible asset being buildings, machinery, plants or furniture, and including intangible assets like know-how, patents, copyrights, trademark, license, franchises or any other business or commercial rights of similar nature, not being goodwill over business or profession in respect of which the same percentage of depreciation is prescribed। उसको टेंजेबल और इंटेंजेबल जो हमारे एसेट हैं उनको ब्लॉक ऑफ एसेट में सिमिलर, जैसे जैसे कि हमारा ए टाइप ऑफ मशीनरी है तो उसका हमने एक ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक ए। बी टाइप मशीन है तो उसका हमने भी ब्लॉक बी बना दिया, इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट। पहले ये 211 में डिफाइंड था, अब ये 217 में डिफाइंड है। बोर्ड की डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बोर्ड की डेफिनेशन वही है, नीदर सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्टर्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। पहले ये टू क्लॉज सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में डिफाइंड था, अब ये 18 में डिफाइंड है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पहले ये 2 सब 12 ए में, क्लॉज 12 ए में डिफाइंड था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अब ये डिफाइंड है क्लॉज नंबर 19 में। तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या इंक्लूड है, लेजर, डे बुक, कैश बुक, अकाउंट बुक एंड अदर बुक वेदर kept in written or form or in electronic or any digital form on cloud storage, cloud based storage। ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ये न्यूली इंसर्ट हुआ है। or any electromagnetic data storage device such as floppy disk, tape, portable data storage device, external hard drives, or memory cards, as printouts of data stored in electronic or digital form or on storage devices mentioned in subclause B। बिजनेस की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। बिजनेस की डेफिनेशन में बस क्लॉज चेंज हुआ है, पहले ये है टू सबसेक्शन 2 क्लॉज 13 में डिफाइन था,
अब ये 20 में डिफाइंड है, क्लॉज 20 में। बिजनेस क्या है? एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर, कोई भी कंसर्न जिसका इन द नेचर ऑफ ट्रेड और कॉमर्स और मैन्युफैक्चर बाय के नेचर से अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो उसको बिजनेस कहेंगे। बिजनेस ट्रस्ट, जो नेक्स्ट आता है बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट की डेफिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं है। सेक्शन पहले ये सब सेक्शन 2 क्लॉज 30 इन ए में डिफाइंड था, अब ये 21 में डिफाइंड है। आप एक चीज देख रहे होंगे कि बीच बीच में नई नई डेफिनेशन इंक्लूड करी है। जैसे 13 है तो 14 करनी चाहिए, नहीं करी, और इसकी जगह 13 ए कर दिया। जैसे कोई डेफिनेशन आ रही है 14 में तो 14 ए कर दिया। ये क्या है? ये एडेड बाय फाइनेंस एक्ट की वजह से होते थे। Infrastructure Investment Trust under the Securities and Exchange Board of India, a real estate investment trust under Securities and Exchange Board of India। नेक्स्ट आता है हमारा कैपिटल असेट। इट इज इम्पोर्टेंट, इसे हम कैपिटल चैप्टर में भी पढ़ेंगे। Capital asset, property of any kind held by assessee whether not connected with business और प्रोफेशन। प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उसको हम कैपिटल एसेट कहेंगे। डी, any security held by foreign institutional investor which has invested in security in accordance with regulation made under Security and Exchange Board of India। अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कोई इन्वेस्टमेंट करी है किसी सिक्योरिटी में जो कि रेगुलेट है सेबी से, तो उसको हम कैपिटल एसेट मानेंगे। या इन्वेस्टमेंट फंड जो कि स्पेसिफाइड है इन सेक्शन 224 सबसेक्शन 10 क्लॉज ए में, तो उसमें कोई अगर हमने किसी इन्वेस्टमेंट करी है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, कैपिटल असेट मानेंगे। और यूनिट लिंक्ड विद इंश्योरेंस पॉलिसी टू विद एक्सटेंशन अंडर शेड्यूल 2 टेबल 2 डज नॉट अप्लाई। जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जिस पर एग्जाम्पशन शेड्यूल 2
लेवल 2 में नहीं है तो वो भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। पर इसमें बट डज नॉट इंक्लूड कोई any stock in trade other than securities referred to in subsection clause B, consumable stores or raw material held for business or profession। अगर आपका कोई स्टॉक है other than securities referred to in sub clause B, consumer stores or raw material held for business or profession, उसको हम नहीं मानेंगे। पर्सनल इफेक्ट्स के पर्सनली रिलेटेड कुछ आपके गुड्स हैं तो उनको भी हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया नॉट बीकल सिचुएटेड, इसमें भी वही कहा है कि म्यूनसिपैलिटी लेस देन 10,000 पॉपुलेशन अर्बन लैंड, 9,000 टू 1 लाख 2 किलोमीटर, 1 लाख टू 10 लाख 6 किलोमीटर, above 10 लाख 8 kilometer. These are called urban land, not a agricultural land. Gold deposit, gold deposit issued under Gold Deposit Scheme 99, issued by Gold Monetization Scheme 2015। अगर कोई गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स हैं जो कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 99 के अंडर हमने इन्वेस्ट किया है तो उसको भी कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर का मीनिंग है वो सेक्शन 110 सबसेक्शन से क्लॉज की बताया गया। पर्सनल इफेक्ट्स मीन मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द assessee or any family member, but exclude पर्सनल इफेक्ट्स में ये चीजें नहीं आएंगी। ज्वेलरी विच इंक्लूड्स ज्वेलरी जैसे ऑर्नामेंट्स हैं मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल, एनी अलॉय और सच प्रीशियस मेटल विद और विदाउट प्रीशियस स्टोन। पहले ये था वेदर और नॉट, अब वो क्या है विद और विदाउट। Semi-precious stones were not but spent into any wearing apparel. Precious or semi-precious stone whether not set in any furniture and utensils or other or were spent into any wearing apparel। कोई प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन है जिसको किसी फर्नीचर यूटेंसिल्स या अदर आर्टिकल या किसी वेयरिंग अप्रैल में स्टिच किया गया है तो उसको भी हम कैपिटल एसेट मानेंगे। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन को भी हम आपका कैपिटल एसेट मानेंगे, पर्सनल इफेक्ट्स में नहीं आएगा। ड्राइंग्स को भी हम कैपिटल एसेट ही मानेंगे, आपकी पेंटिंग्स स्कल्पचर्स एनी वर्क ऑफ आर्ट को भी।
पहले अब ये 22 क्लॉज में है। दूसरे में किसमें था ये बता देता हूँ। पहले ये सेक्शन 2 क्लॉज 14 में था। अब सेक्शन 2 सबसे क्लॉज 22 में डिफाइंड है। Rather charitable purpose, relief of the poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments or places or object of artistic or historic interest, advancement of any other object of general public utility. Charitable purpose में क्या क्या है? Relief of poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments. एक कैपिटल असेट में पहले 6% का जो गोल्ड बॉन्ड से 1977 और 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो थे वो कैपिटल साइड बनाए गए थे, अब उनको रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा चीफ कमिश्नर means a person appointed to be chief commissioner of income tax or a director of general of income tax or a principal chief commissioner of income tax or a principal director general of income tax under 237 1 पहले ये डिफाइन था सेक्शन 117 सबसेक्शन 1 में। पहले ये 2 क्लॉज नंबर 15 ए में डिफाइंड है, अब क्लॉज 24 में डिफाइंड है। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन है चाइल्ड की। इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स अ स्टेप चाइल्ड एंड एन अडॉप्टेड चाइल्ड ऑफ दैट इंडिविजुअल। कोई भी डेफिनेशन क्या चेंज नहीं है, इन ओल्ड वो डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज 3 बी। ठीक है, आज तक लेक्चर 1 लेक्चर 1 यहाँ यहीं पॉज करते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।